Assalamu alaikum class 5. This is Khalid Salim and I hope that all of you are well. In our previous lecture we wrote down a question, wrote down answer of a question that was question number 4 regarding Lahore. So today uh, we are going to read about a new city called Islamabad. We are going to read its history, when it was founded, okay, and then we are going to read about the famous places in Islamabad, and then we are going to read a little bit about Murray as well, okay. So Islamabad is a new city established as the capital of Pakistan in 1960. So Islamabad was established in 1960, and Karachi was the previous capital of Pakistan. Okay, but in 1960, the capital moved from Karachi to Islamabad. Okay, it was a newly established city. Now, location: it is located in the northern Pothohar Plateau, beneath the Margara Hills and in the foothills of the Great Himalayan Mountains. So northern पोटोहार प्लेटो है हमारा, उस पर ये लोकेट करता है, जो कि मागरा हिल्स के नीचे है, और ये है कि स्टार्टिंग ऑफ द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स, उसके बिल्कुल फुट हिल्स पे है, ठीक है. द नेम ऑफ द सिटी मीन्स द अबोर्ड ऑफ इस्लाम. अबोर्ड का मतलब होता है होम, ठीक है. इस्लामाबाद मीन्स होम ऑफ इस्लाम, ओके, रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज इस्लामिक आइडियोलॉजी. अब इसका जो नाम है वो बेसिकली इस्लामिक नज़रिया जो है वो बेसिकली उसकी अक्कासी करता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है. Islamabad is a well-planned city. The initial plan of the city was designed by town planners of a Greek firm of architects. So the planning of the city is very well. They have decided which areas they are going to use as residentials and which areas they are going to use as commercial areas, okay. So, and this basically master plan of the city was developed by टाउन प्लानर्स ऑफ अ ग्रीक फर्म ऑफ आर्किटेक्ट्स, ठीक है. ग्रीक बेसिकली ग्रीस के मुल्क है, सो वहाँ से बेसिकली आर्किटेक्ट्स आए थे एंड दे एक्चुअली डेवलप दिस मास्टर प्लान. It has wide avenues and marked zones for commercial and residential areas as well as business centers. Wide avenues का मतलब होता है चौड़ी सड़कें हैं इसकी, ठीक है. और ये है कि इसके जोन्स जो हैं वो मार्क्ड हैं, जिसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कमर्शियल एरिया सेपरेट है फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, ओके. And the business areas are also are in marked zones, okay. Diplomatic enclave. डिप्लोमेटिक इनक्लेव बेसिकली क्या है, जहाँ पे बाहर के मुल्कों के जो एम्बेसी के अफराद हैं वो वहाँ पे उनका एक सेपरेट जो है वो रहने का एरिया डिसाइडेड है. गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, इंडस्ट्रियल एरिया, पार्क्स एंड woodlands have been retained to create a balanced environment within the city. So all of these things, they are in Islamabad, okay. Diplomatic enclave, government sector, educational sector, industrial areas, पार्क्स एंड वुडलैंड्स हैव बीन रिटेन का मतलब है कि पार्क्स और जो वुडलैंड्स जो हैं उनको बेसिकली उन्होंने ज़ाया नहीं किया, लकड़ियाँ उन्होंने नहीं काटी, बल्कि उनको रिटेन किया, उनको रखा, ताकि एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट जो है वो सिटी की दिखा पाएँ. Islamabad city continues to grow and develop as new sectors are being added to accommodate the growing population. So Islamabad जो है वो अब grow भी कर रहा है. Definitely people are moving in this city and it is also developing, and new sectors are being added to accommodate the growing population. उनको रखने के लिए जो बढ़ती हुई तादाद है आपके लोगों की, उनको रखने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए न्यू सेक्टर्स भी जो हैं इस्लामाबाद के ओरिजिनल मास्टर प्लान के अंदर वो ऐड हो रहे हैं. It is believed that the population of the city is over 1.2 million, according to the consensus in 2009. So अब इसकी population जो है वो तकरीबन 12 लाख जो थी वो 2009 में थी. Okay, there are many scenic sites and recreational places to visit around Islamabad. So बड़ी एक अच्छी व्यू देने के लिए आपके पास scenic sites हैं, ठीक है, and recreational प्लेसेस जो हैं वो आप विज़िट कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एन्जॉयमेंट, ठीक है, अराउंड इस्लामाबाद. सो द फर्स्ट प्लेस वी आर गोइंग टू रीड इज़ दामने को. इट इज़ अ रिक्रिएशनल स्पॉट ऑन द मागरा हिल्स. अब दामने को जो है वो मागरा हिल्स पे लोकेटेड है. द व्यू पॉइंट ऑन द हिल्स गिव्स अ स्प्लेंडेड व्यू ऑफ द सिटी. सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग अटॉप दामने को, सो यूड बी गेटिंग अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल्स ऑफ इस्लामाबाद सिटी. It has been developed as a park with picnic areas and a
रेस्टोरेंट। उसको डेवलप उन्होंने किस तरह किया, एक पार्क एज अ पार्क उन्होंने डेवलप किया है जिसमें पिकनिक एरियाज हैं और एक रेस्टोरेंट भी है। Further up the hills there is a beautiful picnic area at the peak called Pir Suhawa। अगर आप थोड़ा सा और आगे चले जाएं, हिल्स के ऊपर चढ़ जाएं, तो एक बहुत ब्यूटीफुल पिकनिक एरिया जिसको हम कहते हैं पीर सुहावा। ओके, द एरिया अराउंड द पीक इज़ फॉरेस्टेड विद पाइन एंड कॉनिफरस ट्रीज। सो जो एरिया है पीक पे वो उसमें पाइन के दरख्त हैं और कॉनिफरस ट्रीज भी हैं। ठीक है, द एरिया इज़ सेरेन। सेरेन का मतलब होता है पीसफुल। ठीक है, द एरिया इज़ सेरेन and beautiful where nature is undisturbed and inhabited by many species। inhabited का मतलब होता है जो चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, ठीक है, जिनका वहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया होता है, उसको इनहेबिटेड कहते हैं। विद मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो एरिया है वो ब्यूटीफुल है और पीसफुल है, जहाँ पे नेचर जो है ओरिजिनली वो अनडिस्टर्ब्ड है, मतलब वहाँ पे किसी ने कोई आप ये कह देंगे ट्रीज़ वगैरह नहीं काटी, किसी ने कोई नेचुरल वाइल्ड लाइफ या कोई स्पीसीज ऑफ अगर बर्ड्स वगैरह थी वो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, देयर आर वॉकिंग ट्रैक्स, ट्रैकिंग ट्रेल्स, कैंपिंग एरियाज एंड हॉर्स राइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर विजिटर्स। तो बेसिकली अब पीर सुहावा पे क्या है कि वॉकिंग ट्रेल भी है, ट्रैकिंग ट्रेल भी हैं और कैंपिंग एरियाज़ हैं और हॉर्स राइडिंग जो हैं वो फैसिलिटीज़ विजिटर्स के लिए भी हैं। ओके, सो दामने को वी वर रीडिंग अबाउट इट एंड ऑन टॉप ऑफ द हिल्स देयर इज़ अ प्लेस नोन एज पीर सुहावा एंड these places they offer these facilities। okay, now coming to the next one, शक्करपड़ियाँ हैज़ बिन डेवलप्ड ऑन। अब नेक्स्ट प्लेस जो हमारी हैं वो शक्करपड़ियाँ। ठीक है, शक्करपड़ियाँ पार्क हैज़ बिन डेवलप्ड ऑन अ लो हिल बिटवीन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। सो एक हाइट में जो लो हिल है बिटवीन इस्लामाबाद और रावलपिंडी, वहाँ पे शक्करपड़िया पार्क को डेवलप किया गया है। इट ऑफर्स अ ग्रेट व्यू ऑफ बोथ द सिटीज़ एज वेल एज द मागरा हिल्स। तो यहाँ से बेसिकली आपको दोनों सिटीज़ नज़र आएंगी शक्करपड़िया से, और ये कि मागरा हिल्स को भी आप देख सकते हैं। एट द फुट ऑफ द पार्क देयर इज़ अ रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन एंड अ लोक विरसा म्यूजियम। सो बेसिकली पार्क के अंदर जो है बेसिकली एक रोज़ और जैस्मिन गार्डन है, और ये कि लॉक विरसा जो फेमस म्यूजियम है इस्लामाबाद का, दैट इज़ आल्सो लोकेटेड ओवर हियर। ओके, सैदपुर विलेज इज़ अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में एक दूसरा विलेज है सैदपुर विलेज, एंड ये भी एक सियाहों का जो है वो मरकज़ का उनकी अटेंशन का मरकज़ है। इट इज़ अ विलेज ऑन द स्लोप्स ऑफ द मागरा हिल्स। अब ये गांव जो है वो बिल्कुल स्लोप्स पे आपके आता है। स्लोप्स बेसिकली कहते हैं माउंटेन का जो साइड वाला स्टीप जो स्लांटेड जो सरफेस होती है। ठीक है, विच इज़ बिलीव टू बी ऑलमोस्ट 500 ईयर्स ओल्ड। सो सैदपुर विलेज इज़ इन इस्लामाबाद। इट इज़ लोकेटेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द मागरा हिल्स एंड इट इज़ बिलीव टू बी 500 ईयर्स ओल्ड। ओके, so now coming to the next one, Lake View Park is a recent addition to Islamabad's beautiful sites। अब लेक व्यू पार्क जो है वो एक दूसरा एक रिसेंटली इन्होंने डेवलप किया है, और ये इस्लामाबाद की ब्यूटीफुल साइट्स में से एक साइट है। बिल्ट ऑन द बैक शोर्स ऑफ रावल लेक। अब रावल लेक ये है, सो बेसिकली उसके बिल्कुल जो दूसरी तरफ का पिछली तरफ करके जो किनारा है वहाँ पे इन्होंने ये डेवलप किया है। द पार्क हैज़ अ लार्ज केज ऑफ एक्सॉटिक बर्ड्स। एक्सॉटिक का मतलब है फॉरेन, ठीक है, बाहर की बर्ड्स हैं। एंड ऑफर्स रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सच एज बोटिंग, वाटर स्केटिंग, डाइविंग, हॉर्स राइडिंग एंड बगी रेसिंग। सो और दूसरी तरह की भी फन एक्टिविटीज़ ऑफर करता है लेक व्यू पार्क। ठीक है, जिस तरह के हॉर्स राइडिंग हो गया, वाटर स्केटिंग, डाइविंग। डाइविंग बेसिकली मतलब होता है कि आप समुद्र के अंदर छलांग मारते हैं। ओके, एंड बगी रेसिंग एज वेल। The park also has vast lush green gardens with gazebos along with many restaurants as well। gazebos का मतलब होता है कि ओपन सिटिंग एरिया आप ये कह दें। ठीक है, और बेसिकली पार्क जो है उसमें बड़े बड़े से ग्रीन गार्डन्स हैं। ओके, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, और ये कि बैठने की जगह है, और बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ पे। अदर अट्रैक्शंस विद इन द सिटी इंक्लूड फातिमा जिन्ना पार्क, सुपर एंड जिन्ना सुपर शॉपिंग मार्केट, सरीना होटल and the exclusive Islamabad Park which houses an amazing golf course and swimming pool। Okay, so within the city जो है आपके पास फातिमा जिन्ना पार्क है, ठीक है, सुपर एंड जिन्ना सुपर शॉपिंग मार्केट्स हैं। सरीना होटल इज़ ऑल्सो अ फेमस होटल इन इस्लामाबाद, और ये कि एक इस्लामाबाद क्लब है जिसके अंदर आपको एक गोल्फ कोर्स भी मिलता है गोल्फ खेलने के लिए, और ये कि स्विमिंग पूल भी उसके अंदर है।
Okay, important educational institutions in the city are considered to be the Quaid-e-Azam University and the Allama Iqbal Open University. So दो famous आपकी universities भी हैं. One is the Quaid-e-Azam University and the second is Allama Iqbal Open University. Okay. So this was primarily all about Islamabad, its history. It was developed on modern grounds. Okay, it was planned very well by the people who planned it, and then we read about the famous tourist attraction areas in Islamabad, and now we are going to read about Murray. Okay, Murray is just 2 hours away from Islamabad, located in the foothills of Himalayas. Okay, at 2300 meters above the sea level. अब बेसिकली क्या है कि ये 2 घंटे दूर है इस्लामाबाद से, और ये कि बिल्कुल फुट हिल्स ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज जो हमारी स्टार्ट होती हैं ये उधर लोकेटेड है. ठीक है, अर्ली हिल्स जो हम कहते हैं. अब आपको पता है हिमालयन जो एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, इट हैज़ वेरी ह्यूज पीक्स. ठीक है, तो ये बेसिकली सिलसिला छोटी छोटी हिल्स का स्टार्ट हो जाता है एट अ वेरी अर्ली स्टेज. ओके, सो आपका मरी भी उसी एक स्टेज पे है, दैट इज जस्ट 2300 मीटर्स अबव द सी लेवल. मरी वॉज द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश राज. अब मरी जो था हिस्टोरिकली वो एक समर कैपिटल था ब्रिटिश राज का, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट पर रूल कर रही थी. द सिटी डेवलप ट्रिमेंडसली आफ्टर पार्टीशन. सो पार्टीशन के बाद जब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए तो ये सिटी बहुत ज़्यादा जो है इसका डेवलपमेंट देखने में आई एज अ समर रिजोर्ट फॉर द पीपल ऑफ पंजाब. क्यों? क्योंकि ये लोगों ने, पीपल ऑफ पंजाब ने इसको एज अ समर रिजोर्ट स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, यूज़ करना. सो सर्दियों में क्या, गर्मियों में क्या करते थे, जब पंजाब में गर्मी होती थी दे यूज्ड टू गो टू मरी. A number of people spend the summer months in the hills to be away from the heat and warm weather. तो एक लार्ज तादाद है आपकी लोगों की जो कि समर के मंथ्स अपने इन हिल्स में, मरी की हिल्स में स्पेंड करते हैं, ताकि समर की हीट और गर्म जो आपका अब आपकी जो वेदर है पंजाब की उसको escape करने के लिए. The thickly forested area and cool climate of Murray welcome thousands of visitors each year. It is one of the most famous tourist spots in the country. So Murray, everyone knows that Murray is a vacation spot. So जिस किसी से भी आप पूछो कि वो कहाँ जा रहा है, usually the first word that you find on their lips is Murray. ठीक है, so it's a very famous tourist spot in our country. The view of the snow-capped Himalayas is spectacular from Kashmir Point at Murray. So basically आप हिमालय की जो माउंटेन रेंजेस बड़ी बड़ी होती हैं जिनके ऊपर स्नो पड़ी होती है वो कश्मीर पॉइंट है मरी के अंदर, एंड यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम देयर एट दोस माउंटेन्स. Now coming to the next one. Okay. Winter in Murray is harsh as it gets submerged in snow during the winter season. तो विंटर, सर्दियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं मरी के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो है वो पूरा बर्फ़ में डूब जाता है मरी. इवन देन अ नंबर ऑफ पीपल विजिट द सिटी टू एंजॉय द चेंज इन द एटमॉस्फेयर एंड लैंडस्केप फ्रॉम द बिजी सिटी लाइफ. लेकिन फिर भी जो है लोग सर्दियों के मौसम में भी प्रेफर करते हैं कि वो यहाँ पे जाएं ताकि वो शहरी ज़िंदगी से जो है वो निजात पाएँ और यहाँ का एटमॉस्फेयर और लैंडस्केप मरी का एंजॉय कर सकें. ओके, अब वन ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एक आपकी शाह फैसल मॉस्क रह गई है. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी important tourist attraction in the city of Islamabad. Shah Faisal Mosque is one of the most distinguished का मतलब होता है कि someone that is very recognized. ठीक है, landmarks of the city. Landmarks का मतलब होता है कि जो आपके famous चीज़ें होती हैं सिटी के अंदर. ठीक है, landmarks एरिया आप कहते हैं. ठीक है, distinguished well known area of the city. So शाह फैसल जो है वो एक बहुत ही well known distinguished जो है आप ये कहते हैं कि लैंडमार्क ऑफ द सिटी है. सिचुएटेड नियर द मार्गला हिल्स, द मॉस्क इज़ एन एक्सक्विजिट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर. एक्सक्विजिट का मतलब होता है ग्रेट, बेस्ट, ग्रैंड. ठीक है, सो ये बेसिकली मॉस्क जो है ये मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक जीती जागती एग्जाम्पल है. द मॉस्क वॉज डिज़ाइंड बाय अ टर्किश आर्किटेक्ट नेम विडाट डलोके
द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क वॉज डेकोरेटेड बाय पाकिस्तानी। सो बेसिकली इसका डिज़ाइन किसने किया था? एक टर्किश आर्किटेक्ट था जिसने इसको डिज़ाइन किया था, एंड हिज नेम वॉज विदायत दलोके। और जो इंटीरियर ऑफ द मॉस्क है, जो इनसाइड ऑफ द मॉस्क है, वो डेकोरेट की थी पाकिस्तानी आर्टिस्ट सदीक़ैन एंड गुलजी ने, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड टुडे and can accommodate approximately 15,000 people inside and another 65,000 people in the courtyards for प्रेयर्स। सो बेसिकली इसको गिना जाता है, इसका शुमार होता है दुनिया की बड़ी बड़ी मस्जिदों में, और ये अंदर जो है अपने 15,000 जो नमाजी होते हैं उनको सलाहियत रखता है कि उनको अकोमोडेट कर सके, और ये कि उसके बाहर जो है वो 65,000 पीपल जो हैं मस्जिद के बाहर वो पढ़ सकते हैं नमाज। शाह फैसल मॉस्क हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर लेट किंग। लेट किंग का मतलब है कि वो किंग फोर्थ हो गया है, तो इसका नाम शाह फैसल मॉस्क का रखा गया है एक लेट किंग सऊदी अरेबिया का जिसका नाम था शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़। ओके, तो इसके नाम के पीछे वो रखा गया है फैसल मॉस्क का नाम। द कंप्लीट कॉस्ट ऑफ द मॉस्क कंस्ट्रक्शन वाज फंडेड बाय हिम। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसने पूरा खर्चा उठाया था जो कि ये मस्जिद जब बन रही थी। ओके, सो आई होप दैट you have understood this lesson quite well, so give it a quick reading on your own as well. Okay, and if any question arises, just feel free to contact me. Thank you.